कैथोलिक कलीसिया की मसीही तालीम क्या है, जानेंगे इनको और भी करीब से। हमारा खास कार्यक्रम कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में। जय यीशु की आवाज़ से प्रार्थना करिए। प्यारे प्रभु जी, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਮੀਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਦੇਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। It is a human act, a grace as well as a human act। तो इस गल नूं असीं ठीक तरीके दे नाल समझना है। मैं विश्वास करदा हाँ, मैं ईमान रखदा हाँ, तो ये मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है। तो इस दे बारे असीं ये गल आगे समझना है। विश्वास जो परमेश्वर ने दिता है, जो प्रगटावा परमेश्वर ने ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਈਮਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅਬਰਾਹਮ ਜਾਂ ਨੋਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਨੂਹਾ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਬਣਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ में ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? विश्वास। ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? विश्वास यही सी कि प्रभु ने जो बोला है, प्रभु ने जो प्रकट किया है, ये सच है। पर इस सच्चाई ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ में ਆਵੇਗਾ। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल खड़ा करता है कि मैं किस तरह माना कि बाद विच की पता होगा या नहीं होगा। ये है विश्वास सानू इसी तरह का यकीन बना लेंदा है कि जो परमेश्वर ने किया है, भावें हुण ये कुछ भी होया नहीं है, पर जरूर वो होवेगा। असी पुराने नियम दे विच प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देंगे विश्वास के बारे। देखो, ਜਦੋਂ ਏਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋੜੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਾ। ਏਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰਾਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 7 ਵਾਰੀ ਉਹ ਡੁਬਕੀ ਲਾਓ। ਅਤੇ ਨਾਮਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਿਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, सिर्फ यही किया है कि जाके नहावो। ਅਤੇ ਨਾਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲਿਆ, तो ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। तो परमेश्वर ने जो ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ऐसे स्वीकार करना वो इंसान के बुद्धि ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ में आएंगे। नहीं तो इंसान के अपने बुद्धि के सहारे जो प्रकट किया गया है, ये सारी चीज़ा इसका कोई मूल्य नहीं है। जेकर ऐसे सारे लोग स्वीकार कर लेंदा है तो हुण सभी लोग विश्वासी बन जाते नहीं, हुण तो हुआ नहीं। बहुत सारे लोग है जिन्होंने इन्हां दा कोई मतलब समझ में नहीं आता, भावें ये सच है। तो कुंवारी मरियम वल असीं वेखदे हां, उन्हें विश्वास की थी। तो एलिसबा माँ मरियम के बारे दसदा, तू धन है क्योंकि तू विश्वास किया, जो प्रभु ने जो तेनू किया है तू उस उत्ते विश्वास की है, इसी करके तू धन है। तो माँ मरियम इसी करके धन है क्योंकि वो परमेश्वर दियां गल्लां उत्ते विश्वास की। कि जो प्रभु ने साडे ते प्रगट करता, जिब्राइल फरिश्ते दे राही प्रगट किया सी, पर उन्हां गल्लां नूं मनना जो एक कुंवारी गर्भवती होणगे, ये किस तरह हो सकता है। पवित्र आत्मा तेरे ते छाया करनगे, पवित्र आत्मा का यह काम है। वो विश्वास की, विश्वास के जरिए देखो मुक्तिदाता इस संसार दे विच आया। तो साडे लई ये गल समझना बहुत जरूरी है कि जो कलीसिया के इतिहास दे विच बहुत सारे लोग, संत लोग, अज दे समय विच भी बहुत सारे चमत्कार हुंदा है। जदों पुरोहित कहंदा है तू ठीक हो जा, उन्ना वो ठीक हो जाता है जो विश्वास दे नाल उसनूं स्वीकार करता है। तुसीं हुण जो वचन सुनदा है प्रार्थना दे विच, तुहाडे परेशानी बीमारी प्रभु यीशु हुण ठीक करेगा, जदों बोलदा है, जो विश्वास दे नाल उहनूं स्वीकार करेगा उन्हां दे लई वो हुंदा है। इसी करके प्रभु यीशु अपने जो काम दे विचकार, प्रचार दे विचकार, जदों लोग आके उन्होंने प्रभु जी मैनूं आ बीमारी, मैनूं यह मुश्किल है, कि तू विश्वास कर दे कि मैं ये तेरे लिए कर सका, तो जो तेरे विश्वास है उस मुताबिक। तो असी ये जो विश्वास है जो परमेश्वर ने प्रगट किया है, इसी तरह का छोटे एक एक काम के विश्वास के बारे नहीं कहता। असी कहता है जो मुक्ति का भेद प्रभु ने साढ़े ते प्रगट किया है, इन्ना उत्ते विश्वास करना। अते उसनों एक ये जो छोटे चमत्कारां, जो चंगियाई
ਵਗੈਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੀ सेवा, बीमारा ते प्रार्थना करेगा तो चंगा हो जाता है। तो इसका मतलब यही है, इसके पीछे जो सच्चाई है ये सच है। इसी करके जो परमेश्वर है, परमेश्वर दी गल्लां हैं, सच्चाई है, ये विश्वास योग है, ये मनन योग है। विश्वास योग है मतलब इसनों मैं कबूल कर सकते हम बिना शक दे, बिना डर दे। मैं इसी करके कहता है विश्वास जिहड़ी है ये सर्टन है, ये पक्का है। ये जो विश्वास है इसे नहीं हाँ जी शायद होएगा, शायद हो नहीं हो ना, ये शायद वाली बात नहीं है। जो परमेश्वर ने जो साडे ते प्रगट किया है ये पक्का है। ਜਦੋਂ प्रभु ने सानू स्वर्ग दे विच खजाना, स्वर्ग दे विच जीवन वायदा करता है, ये हाँ हो जाएगा, हो सकता नहीं, ये पक्का है। जो प्रभु यीशु ते विश्वास करता है उन्होंने आनंद जीवन देने का जो वायदा है ये पक्का है, यकीन रखने वाली चीज़ है। जो प्रभु कहता है कि मेरा जो मांस खाता है, मेरा खून पींदा है, मेरे राही वो जिंदा रहेगा, ये पक्का है। जो हम प्रभु यीशु का बदन ते लहू पाकशरक दे विच रोटी ते दाखरस दे राही जो इंसान स्वीकार करता है, ये प्रभु यीशु का बदन अते लहू है। ये शक वाली गल नहीं, खोन वाली हो सकेगा नहीं बात, ये पक्का है, ये विश्वास है। स्वर्ग है, परमेश्वर है, तो परमेश्वर सानू जो उसकी खोज करता है, परमेश्वर के बारे सोचता है, उन्होंने वो जीवन देता है। ये सच्चाई है, यकीन करो, विश्वास करो, इसी तरह ही सानू फसल मिलता है। तो साढ़े जो विश्वास है ये जो साढ़े ते प्रगट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि असी सब कुछ सानू समझ में आ गया है। नहीं, असी विश्वास करते हाँ कि जो वड्डा खजाना प्रभु ने दिता है उहदे विच थोड़ी जी सानू समझ में आया है, तो ये बारे होर जिन्ने हो सकते होर समझने लई कोशिश करना है। किदा कोशिश करना है? पवित्र आत्मा की मदद नाल, फसल दे नाल। हर रोज़ मैं जो प्रभु का वचन नूं पढ़ेगा जो साढ़े ते प्रगट किया है, हर रोज़ मैं जो कलीसिया दियां तलीम जो है इसनूं पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, उस मनन चिंतन करनगे, हौली हौली प्रभु साढ़े दिमाग के विच रोशनी होर पावेगा। साढ़े मन इस तरीके नाल विकसित होंदे रहणगे। जिस तरह संत मदर तेरेसा सानू कहंदा सी कि जो तुसी प्रार्थना करोगे तुहाडे हृदय इसी तरह इन्ना विकसित हो जाएंगे कि परमेश्वर आप पूरी तरह तुहाडे दिल विच आके वसणगे। इसी तरह विश्वास दीयां गल्लां कोई भी जे कहेगा कि मैनू विश्वास दी सारा गल्लां दा पता है, नहीं, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है, ये भेद है। इसनूं पूर्ण तौर ते तद ही असी समझ सकणगे जदों असी पूर्ण तौर ते प्रभु कोल स्वर्ग दे विच पहुंचेगा। पर जो सच्चाई प्रभु ने प्रगट किया है ये यकीन रखने वाला इनू पूर्ण तौर पर मैं मनदा हाँ, अते इसनू हर रोज़ जिस तरह प्रभु मैनू फसल देवेगा मैं हर रोज़ इसनू होर समझांगे। इसी करके हर रोज़ प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना के जरिए पवित्र आत्मा साढ़े अंदर काम करनगे। ये प्रार्थना करने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा साढ़े अंदर काम करके साढ़े जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो साढ़े जितना साढ़े कोल है बुद्धि, इसनों वो विकसित करेगा अते खुदा दियां गल्लां नूं समझण दे लई वो सानू फसल दिंदा है। तो उसकी मदद तो बगैर असी कुछ नहीं कर सकता है। तो इस करके ये कोशिश जो है ये करते रहना चाहिए है। यानी कि चलो एक बारी मैं बाइबल पढ़ लिया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारा कुछ मैनू कुछ नहीं समझ में आएगा। एक बारी बाइबल पढ़ेगा तो बस थोड़ी जी शायद इधर उधर से कुछ समझ में आएगा। ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ हम होर पढ़नगे, बार बार उसनों पढ़ते रहणगे ਅਤੇ अपने जिंदगी ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ करके ਅਸੀਂ सोचते रहांगे, परमेश्वर की रोशनी हर रोज़ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ चमकेगा। तो तुहाडी जो समझ है ये बढ़ते रहणगे।
इथों तक कि परमेश्वर जितने प्रभु चाहता है उतना समझने के लिए। तो संत थॉमस एक्विनास देखो कितना बुद्धिमान व्यक्ति, उसने इस दे अध्ययन करके कितना सारिया गल्लां लिखा है, पर आखिर दे विच कहंदा है जदों परमेश्वर ने ये सारे गल्लां उहदे सामने खोल के रख दिता, उन्हें बोला मैं जितने कुछ मैं लिखिया पढ़िया है, ये जो हुण मैनूं समझ में ये तुलने दे विच कुछ भी नहीं है। ये है जो बहुत ही बुद्धिमान लोगों की गल। तो असी साधारण लोग असी परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखते हाँ, तो प्रभु रोज़ सानू समझ दिंदा है, सही की है गलत ही है इसकी पहचान की समझ, अते परमेश्वर की महिमा करने के लिए सानू वो शक्ति दिंदा है। अब असी प्रार्थना करिए कि प्रभु ने जो सानू सिखाउंदा है, सानू समझाउंदा है, इसके मुताबिक असी जिंदगी बिता सकीए। असी अपनी बुद्धि नूं होर पासे लेके जाके गवाना नहीं चाहिए। परमेश्वर उत्ते भरोसा रखना कि प्रभु सानू मदद करेगा, उसकी फसल सानू संभालेगा। अब असी प्रार्थना करांगे। प्यारे प्रभु जी, असी तेरा धन्नवाद, तेरे शुक्र करते हैं, तू कितना दयालु मेहरबान है। प्रभु जी, तू जो विश्वास दियाँ भेदां तू साडे ते प्रगट कीता है, इनू पूर्ण तौर पर समझण दे लई असी अयोग हाँ। तेरी रोशनी, तेरी मदद की लोड़ है। हर रोज़ साडे नाल जो वापरदा है इसनू असी समझण दे लई योग नहीं हाँ। जदों तेरे फजल, तेरे वचन साडे ते आवेगा, असी उन्हां नू समझ सकांगे अते उन्हूं स्वीकार कर सकांगे। प्यारे प्रभु, जिस तरह अब्राहम, नामान अते बाकी सारे बहुत सारे लोगों ने विश्वास के जरिए तेरे वचन उत्ते विश्वास रखे, चंगियाई प्राप्त कीता है। प्रभु, तेरे ते विश्वास करके रोज़ाना साड़ी जिंदगी विच आउण वाले हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, इन्हां दे विचों छुटकारा देण वाला तू है, ये समझ के तेरे कोल पहुँचण दे लई प्रभु जी सानू आशीष प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन नूं सुनण वाले सब लोगों नूं उन्हां दे परिवार दे विच शांति, आनंद प्रदान कर, बीमारियां नूं दूर कर दे। प्रभु, पूरी कुदरत वाले खुदा, बाप ते बेटा ते रूपा की आशीष तुहाडे ते होवे ते तुहाडे नाल रहे। आमीन। सारियां नूं जय यीशु की।